Good morning, ma'am. Am I audible to all of you? Yes. Okay. Students, I was just going through your papers. तो तुम लोगों को क्वेश्चन एक दो समझ में नहीं आया क्या? By tomorrow you'll able to see your marks also. यार एक तो क्वेश्चन जो मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन सिस्टम का था, उसमें तुम लोगों ने मतलब उसके अलावा, और जबकि क्लास में वी हैव डिस्कस्ड इन सो मच इन डिटेल अबाउट ईच एंड एवरी प्रोसेसेस, still you all have not written it properly. Somebody has written about ERP, somebody has written about supply chain, मतलब सब चीजें लिख दी हैं. I am not telling that all the students have written like that. It's few who have written like that. Only few the correct answers have written. उसमें क्या प्रॉब्लम क्या था, मुझे ये बताओ जरा, क्या समझने में दिक्कत थी आप लोग? सिंपल सीआरएम का क्वेश्चन में आपको सोशल सीआरएम के बारे में लिखना था. मतलब हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स हैव रिटन अबाउट सोशल सीआरएम, बाकी सबने कुछ से कुछ पूरा सीआरएम लिखा दिया, टाइप्स ऑफ सीआरएम लिखा दिया, जरूरत ही नहीं थी वहां पे. व्हाई दिस हैज हैपेंड? यू हैव नॉट रेड द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली. से समथिंग, यस और नो, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, कुछ तो बताओ मुझे तुम. मैम टाइम लिमिट कम था. अनुज एक बात बताओ, तुम्हें टाइम लिमिट लेने कम अगर है तो आप कम लिखते हो ना, जो टॉप टू द पॉइंट चीजें हैं वो लिखते हो ना. अनुज मैम लेकिन आईएसएम का फर्स्ट एग्जाम था तो इतना आइडिया नहीं था हमें कि सब अब हो गया ना? हाँ अब हो गया. अब हो गया. अभी कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो वाला नाउ knowing I are quite much aware about it. Yes, ma'am. Please read the questions properly. Everything is not required to write. वहां जहां पे आप लोगों को लिखना था केस स्टडी में, आप लोगों ने बहुत कम लिखा हुआ है. अभी मैंने पूरे करेक्शंस नहीं किए हैं, बट द फ्यू विच आई हैव करेक्टेड. This is after such a long period I am finding that in ISM students are not securing good marks. मैम केस स्टडी तक टाइम ही नहीं बचा था मैम, एकदम खत्म हो गया था टाइम, तो इसलिए पूरा नहीं लिख पाया. मतलब तो अभी बच्चे आप लोग अभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन में है ना, यू ऑल हैव टू मैनेज द टाइम. पहले देख लो कि कहाँ किस क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है. अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन गो फॉर द इजियर वंस. And in the end term examinations is going to be double. Obviously time भी उसमें बढ़ जाएगा आपका, लेकिन the thing is the questions भी double हो जाएंगे आप. Getting my point? So please see, now what is the scenario that now all the theory part is covered. Okay class? Early DBMS you have a little bit of theory, and that too we will be using for your normalization and the ER diagram. So two of your things, that is a normalization and ER diagram, you need to solve, you need to draw. ER diagram you have to draw it. Okay, so your theory part is over now, and the rest theory part, the current trends which are left, I am going to distribute amongst you all tomorrow, or by tomorrow I will send you the group. Okay, group formation and the title also of the topic of the presentation also I will be sharing by tomorrow. Then that you will be presenting, and after that you will be having MS Access. आज हम Excel करेंगे, so you are done with almost all your theory parts, students. Getting my point? So please now keep on revising. ये नहीं कि अब आपका हो गया है वो सब तो भूल जाना है. No, that will again come in the end term examination, students. Got it? Now you have like in normalization, the thing is that I will tell you how to solve it. मैं आपसे solve भी करवाऊंगी class में. The thing is that you will have to solve it, and if your tables are correct, if your ER diagrams are correct, then you get full marks for that. We don't deduct marks for that. It's other way around also, students. It's other way around is like you will then be not having your if it is wrong, then you will not be getting any marks at all. Okay, so but ऐसा होता नहीं, students generally बना ले जाते हैं, and we expect that you all just make it and secure good marks, because I am not very much satisfied till now, students, to be very honest. I as a faculty, I'm feeling that maybe my students have not understood the concepts properly or something, whatever, I really don't know.
So please, my sincere request to all of you, this is again, you will have a good amount of chance to secure good marks. Okay. And the thing is that you will be having 20 marks post midterm. So post midterm, you will be having 10 marks. I will be taking as of your this thing, your class your presentation and MS Access project, and 10 marks for the quiz. I will be taking one more for the DBMS topic because आप लोगों को टेस्ट भी लेना मुझे बहुत जरूरी है, नहीं लूंगी तो फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते, ठीक है? तो one quiz also I will be taking up, and then your class participation. All right, students. So all these things are there because the class participation earlier I have not given it to you. So because I have thought of I will see throughout the semester and then I will give the marks for it. Okay, so by the end of the semester, I will be giving you for marks for that also. So you have ample opportunity to secure good marks, and end term examination is obviously, or that is also there, which is having the highest weightage. Okay, so secure good marks. This is not the end. This is just the beginning. Now you have understood that how to just go about it, how to just manage the time, everything. Because students, देखो अभी अब आप लोगों का भी आज ही एक SIP का process है. Then again, this will keep on happening. So you have to manage all those things with your studies. Getting my point? So please care yourself. एंड प्लीज कहीं कुछ दिक्कत होती है तो प्लीज आओ ना, हमारे से पूछो, कुछ भी कोई कभी कोई भी प्रॉब्लम होता है, प्लीज आस्क, प्लीज कॉल मी कि मैम ये नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज समझा. गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्लीज माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. आप लोग पूछोगे, आप लोगों को कहीं डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, खुल के बोलो मैम नहीं समझ में आ रहा है ये टॉपिक, मुझे प्लीज समझाएं फिर से. Ma'am, ANSEM में कितना what will be the format for the questions? See, format almost because that is also of 100 marks. So your case study part will be having 2 questions because शायद कुछ क्योंकि last year ऐसे pattern नहीं था तो change हो गया, तो maybe this time also the questions will be changing. Your MCQ will also increase and your second part will also increase. But this time more practical oriented questions will be coming, like normalization and your ER diagrams will be coming. Ma'am, honestly speaking, what happened in midterm was that questions समझने का time ही नहीं था. मतलब एक क्वेश्चन समझने जाएंगे तो दूसरा का टाइम है, तो जितना आया उतना ही लिख दिया. Because Yes, ma'am, that is the main problem. Honestly, ma'am, within 2 hours at 1:45 तक we can actually work on the questions because 15 minutes में we need to upload the same in the system. तो 15 मिनट में वहीं पे चला गया. अब 100 मार्क्स का एग्जाम मैम 145 में मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं किया मैम, तो छोड़ दीजिए. मेरा तो मतलब लिखने का स्पीड भी कम हो गया है. मैं तो खुद केस स्टडी अटेम्प्ट नहीं कर पाया, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया मैम. Yes, ma'am. Timing is the biggest constraint. See, but you again मैं ये बोलूंगी मैनेज करना सीखो. और उसके बीच में तुम लोगों ने क्वेश्चंस कैसे शेयर किए हैं मेरे पास, नाम नहीं बोलना चाहती हूँ लेकिन सेम आंसर शिफ्ट हुए इधर, उसके लिए टाइम था आप लोगों के पास. यस, सेक्शन क्यू. अब डोंट टेल मी कि मैम नहीं हुआ ऐसा कुछ भी. यस गौरव, हुआ है कि नहीं हुआ है? Okay. Don't tell me you two have left the questions, but मैं तो अभी क्वेश्चन ही छोड़ के चला आया. मैम ये तो फर्स्ट पेपर था, ये तो हमने पढ़ के किया था. Oh my God, अपूर्वा प्लीज मैं बोलो मत. कुछ बच्चों ने तो एकदम, अब जब किसी ने एक लिख दिया भले ही वो गलत है सही है, सब ने वही कॉपी किया है. Ma'am, that was Anuj, I guess. Anuj said. Oh, sorry, Apurva. हाँ. No problem, ma'am. अनुज हुआ है कि नहीं हुआ है? मुझसे मत चिपकाओ, हम लोग तो सीजन हो गए, हम लोग चेक करते हैं. मैम बट केस स्टडी की वो क्वालिटी नहीं लिख पाया मैं. बाकी yes ma'am, even I also faced when we were solving the case study. मतलब लास्ट के 10-15 मिनट बचे थे तो मतलब जो भी दिमाग में आ रहा था वो हम लोग ने सब लिख डाला, बिकॉज मतलब हम लोग को पता ही नहीं चल रहा था कि टाइम के प्रेशर में कैसा क्या लिखना है. इट वुड बी ग्रेट इफ यू एटलीस्ट यू नो कि एग्जाम के पहले आप
एक दो केस स्टडी भी आप बता दोगे कि कैसे आपको अप्लाई करना एंड ऑल दैट, नो? तो हम लोग को भी एक अप्रोच पता चल जाएगा कि व्हाट एज अ फैकल्टी यू आर एक्सपेक्टिंग। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो केस स्टडी ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग जो पढ़ाते हैं आपको, ऑब्वियसली वी हैव रेड 1 or 2 केस स्टडीज आल्सो। जैसे आप लोग 11th-12th में याद है अनसीन पैसेजेस पढ़ते थे, कॉम्प्रिहेंशन, 12th में कैट के भी एग्जामिनेशन में, Yes, ma'am. समथिंग वेयर इन व्हाट यू हैव स्टडीड यू हैव टू अप्लाई दैट। ओके, आप ये चीज समझो हमेशा, भले ही हम कितने भी केस स्टडी आपके साथ डिस्कस कर ले, एंड पॉइंट पे आके आपको अप्लाई करना है अपना खुद का ब्रेन, ठीक है? सो द व्हाटएवर यू हैव स्टडीड, just link it with that, okay, this concept is being used in this particular scenario, this can be solved through this. So obviously Anuj, I will just make it a point that मैं आप लोगों के साथ एक दो और डिस्कस कर लूं, so that it will be easy for you all to write in the examination. ठीक है, चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट स्टिल अभी आगे ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? और टाइम मैनेज करना सीखो, एंड प्लीज डोंट स्पेंड टू मच टाइम one answer, okay? And just go for the best, and then अभी तो है टाइम, हम लोग आराम से करेंगे काम, ठीक है? Now open your VLOOKUP वाले students sheet. Today I will be completing with your Excel, so that can next class we will start with your DBMS, okay? Please open, all of you. Can you see my Excel sheet? No, ma'am. Yes, ma'am. Okay, all of you have opened it. Please open this sheet. Employee code, personal name, state department, salary, duration. Please open this sheet. ठीक है? Okay. Now, what is VLOOKUP? ठीक है, हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसका VLOOKUP? VLOOKUP is something, it's a concept which facilitates you in analyzing and finding out the any data which is there lying around in somewhere in your data sheets. ठीक है? So VLOOKUP is something wherein you are looking up for a value. You are looking up for a value, not within this particular sheet also, but from some other sheet, from some other workbook. So all those things can be easily done through your VLOOKUP. VLOOKUP is what? VLOOKUP is your vertical lookup. VLOOKUP is your vertical lookup, wherein you will be just going from left to right. आप left to right आ सकते हो हमेशा VLOOKUP. Getting my point? Like for example, अभी हम start करते हैं. And what's the full form of VLOOKUP? It's the vertical lookup. क्या होता है full form VLOOKUP का students? Vertical. ठीक है? So vertical lookup. Now, if any one of you must be having this Office 365, अभी VLOOKUP and all का एक बहुत ही तगड़ा चीज आ चुका है, that is your XLOOKUP, wherein VLOOKUP के अपने कुछ limitations हैं, like in VLOOKUP you cannot go back. जैसे अभी मुझे पता करना है कि आपको मैंने डिपार्टमेंट दे दिया, okay? If I have given you the department and I'll tell you to please find out the name of that particular person who is working in that department, you won't be able to find out because it cannot go back. It just move forward. But in XLOOKUP, what is happening? It is able to just find out everything. But लेकिन VLOOKUP is the basic thing. इसको समझना बहुत ही जरूरी होता है. Then we will in the second semester in IVA we will be doing double lookup, reverse lookup, index matching, horizontal lookup, all those things we will be doing in the second semester. ठीक है, तो ये चीज हम करेंगे. अभी VLOOKUP क्या करता है? जैसे for example, I just pick up any employee code from here. जैसे 232 उठाया मैंने, ठीक है? यहाँ पे मैंने पेस्ट किया. जस्ट ये पिक करो 232 AMP 0232. हाँ वो करना. Please mute yourself. Please, happy birthday. Please mute yourself. सांगना तेवढं please. Please tell her to mute herself. Okay, and इसका हमें डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना, ठीक है?
अभी हम कैसे करेंगे? अभी आप बोलोगे नहीं, तो अगर आपको ऐसे करना होगा तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे मैम कंट्रोल F कर दें एंड देन वी विल फाइंड आउट एंड देन, तो दिस इज समथिंग व्हिच इज द मैनुअल वे यू विल बी फाइंडिंग आउट, फिल्टर आउट करोगे या कुछ भी करोगे. सो दैट इज अ वेरी वेरी मैनुअल प्रोसेस. बस यही जो आपके पास 1000 डेटा सेट्स है, लैक्स ऑफ डेटा सेट्स है, on that you have to work on, in that you have to find something. Then in that case what you will do? So for all those purposes, the formula writing is one of the most effective tool through which you can easily write the things. So for example, अगर मुझे ये AMP 0232, all of you have written this, students, employee code and department like this, and we have to find what? Yes, we yes. have to find the department of this particular employee code. तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करेंगे. इक्वल टू वी लुकअप. ठीक है, लुकअप वैल्यू. देखो अभी पहले फॉर्मूला को समझो कि फॉर्मूला को बोल क्या रहा है. तो वी लुकअप बोल रहा है पहले कि लुकअप वैल्यू टेबल अरे कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप. सो लुकअप वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा कि हमें ढूंढना क्या, व्हाट यू फाइंड फ्रॉम दी, व्हाट यू वांट टू फाइंड फ्रॉम दी टेबल. सो दिस इज द एम्प्लॉय कोड. देन टॉकिंग अबाउट द टेबल एरे. टेबल एरे क्या है? तो टेबल अरे हम पूरा का पूरा टेबल उसको उठा के दे देते हैं. ठीक है, नॉट द हेडर, हेडर नहीं देते हैं. ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एक दूसरा चीज होता है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर. कॉलम इंडेक्स नंबर, व्हाट इज कॉलम इंडेक्स नंबर? सो इन योर वी लुकअप द कॉलम इंडेक्स नंबर इज ऑल द कॉलम which is there in your टेबल. ओके, तो जैसे हमें एम्प्लॉय कोड, जहां से जो हमें लुकअप वैल्यू जिस कॉलम में रहता है वहां से हम स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज योर एम्प्लॉय कोड. एक मैं लिख देती हूँ. just wait. This is your one column index number. Okay. Okay, this is the column number 2. Okay, this is column number 3. This is column number 4. This is column number 5. And this is column number 6. What you write it? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको देखना है, you can just एक ये ऊपर बनाओ, यहाँ पे एक इंसर्ट करो. And this is your, लिख दो यहाँ पे column index 1. ठीक है, तो ये आपका कॉलम इंडेक्स 2, कॉलम इंडेक्स 3, कॉलम इंडेक्स 4, कॉलम इंडेक्स 5, कॉलम इंडेक्स 6 हो गया. ओके, अब चलो फिर फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग यहाँ पे भी. इक्वल टू वी लुकअप. लुकअप वैल्यू इज दिस, टेबल अरे इज दिस. ओके, नाउ डिपार्टमेंट किस कॉलम इंडेक्स में है स्टूडेंट्स? किसमें है डिपार्टमेंट? 4. Where is 4? So you will write what? 4 over here. Okay. Now, comma. Now, your VLOOKUP asks for your true, that is 1, the approximate match. Like for example, if you're finding any numbers, so आपको से lesser than या greater than number भी चल सकता है आपके लिए. But generally, in 99% of the cases, you go for the false, that is your exact match only. And especially when you want to find some text. ठीक है, एज ए डिपार्टमेंट हो गया, तो इसका आपको टेक्स्ट ढूंढना है. तो अभी टेक्स्ट के लिए तो ऑब्वियसली उसकी कोई अप्रोक्सीमेट मैच नहीं होगी ना. इट शुड बी ऑलवेज द एग्जैक्ट मैच यू वांट टू फाइंड आउट. सो ट्रू के लिए हम 1 यूज करते हैं एंड फॉल्स के लिए यू यूज 0. Okay, so you can write false also. You can write false also. No issues with it. But we generally 0 or 1 is more convenient. So we write 0 and you will get the result operations. यहाँ पे लिख लो आप 1 is used for your true
value, that is the approximate match, and 0 is used for your false, that is your exact match. ठीक है, ये लिख लो कहीं पे आप कि 0 और 1 हम क्यों यूज करते हैं. मैम कैन यू रिपीट दिस 0 and 1 वाला पार्ट पहले से, मुझे समझा नहीं. अच्छा एक मिनट, देखो 0 हमारा बताता है कि जैसे मान लो तुम कुछ सर्च कर रहे हो अपने टेबल में, when you are trying to find something from your table, so in that case what is happening, maybe for example 25.22 is written something, 25.33 is written something. So if you are going for, आपको लगता है कि अगर ठीक है 25 के अराउंड जितने भी डेटा वो हम सब सर्च करें, so in that case you can just use the one functional over here. But क्या क्यों हो रहा है वो approximate match के लिए हम वो यूज करते हैं. Why we are using that? For finding the approximate value, like approximately this or approximately that. So, but that generally this is coming in the case when you are you are having any numerical data or the numerical figures which you are having in your which you are going to find. But false is something is the exact match. You know, we don't watch the approximate match. If the data is not lying, you should be given the NA values or something like that. But I don't want the approximate matches. I want only the exact matches from the entire table. So in that case, you use 0. आप false भी use कर सकते हो, false भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? It's your choice. But लेकिन 0 is more convenient to write. Student find it more convenient to write, so you can write the 0. ये सबका आया आंसर ऑपरेशंस यहाँ पे. Yes. Yes, ma'am. किसका नहीं आया, किसका नहीं आया उस टाइम. स्टूडेंट्स मैं ये चीज अब रिपीट नहीं करूंगी सेकेंड सेमेस्टर में. आई विल गो एडवांस लेवल, इसका एडवांस लेवल पे चलूंगी. सो आई एक्सपेक्ट दैट ये जो बेसिक फॉर्मूला है ये आप लोग पूरा अच्छे से समझ लो आज. एनी स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग प्रॉब्लम whose answers have not come? मैम एक बार और बता दीजिए वी लुकअप वाला पूरा. ठीक है, तुम अपना स्क्रीन शेयर करो. यस मैम. ओके आओ यहाँ पे फॉर्मूला में जहाँ पे रेफ लिखा हुआ है समझे. हाँ ओके delete that section. Delete that. What happened? My screen is flickering. I don't know why. हाँ चलो अभी देखो. अच्छा सबसे पहली बात आपने यहाँ पे हेडर भी लिया हुआ है, ठीक है? हेडर नहीं लेना, मैंने फर्स्ट टाइम बोला हेडर नहीं लेना. सो पहले वी लुकअप लिखना शुरू करो. फर्स्ट थिंग सेलेक्ट दिस I6 नाउ AMP0232. नो नॉट फ्रॉम देयर, सीधे यहीं पे करो, यहीं से स्टार्ट करो. नॉट V2 नहीं, AI दिस वन. यस सेलेक्ट दिस. ओके कॉमा टेबल अरे, यहाँ से अभय जहां से लिखा है ना तुमने वो सेलेक्ट करो, वहां से जस्ट सेलेक्ट दैट. यस कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन, राइट एरो ना, पूरा टेबल अरे सेलेक्ट करना है बच्चे. हाँ यस वेरी गुड. ठीक है ये हो गया. नाउ क्या फाइंड आउट करना है? कॉमा अगेन कॉमा. क्या कॉलम इंडेक्स क्या निकालना है? हमें डिपार्टमेंट निकालना है. तो डिपार्टमेंट इज कमिंग इन 1 2 3 4 में आएगा. 4 नहीं तुमने ए सेलेक्ट नहीं किया है. मैम ये डिपार्टमेंट वाला A2 दैट इज योर एम्प्लॉय कोड, इसीलिए तुम्हें नहीं आ रहा है आपका. ओके. हाँ ये भी सेलेक्ट करो ना. हाँ नॉट एम्प्लॉय कोड, यहाँ A2 से A2 नहीं A2 B2 से F65 जो सेलेक्ट किया ना तुमने उसको A2 कर दो बस. ओके. हाँ ए मेक इट ए, वहां भी डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, वो अपने आप सेलेक्ट करेगा. ठीक है. हाँ नाउ आफ्टर दी कॉमा राइट 1 2 3 4
डिपार्टमेंट इज इन फोर्थ कॉलम, तो फोर्थ में फोर लिखो, फोर नहीं फोर लिखना है, वो नहीं सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, बिकॉज वी वांट टू गिव द कॉलम इंडेक्स नंबर एंड देन कॉमा अगेन कॉमा, एंड यू वांट टू फाइंड द एग्जैक्ट मैच फॉल्स, चाहे तो फॉल्स सेलेक्ट कर लो, फॉल्स सेलेक्ट करो, अच्छा तुम फॉल्स ही सेलेक्ट कर लो, कम डाउन, हिट टैप बटन, टैप आ गया। नहीं तो आप इसकी जगह पे छोड़ भी सकते हो या जीरो भी लिख सकते हो, बट डोंट लीव इट लाइक दैट, जीरो में मेक इट जीरो और दिस थिंग फॉल्स करो इसको, 4 के बाद जीरो करो, राइट जीरो, यस, ठीक है, इट इज अ कंप्लीट वन, नहीं तो ऐसे नहीं आता है, फिर आंसर्स में प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, ठीक मैम, वही मैम टेबल अरे वाला दिक्कत हो रहा था। हाँ टेबल अरे, क्या था? यस, बिकॉज ऑफ दैट, थैंक यू। thank you Saksham. Anybody else who is facing problem? Anyone? Kinari, are you done with your VLOOKUP formula? Yes, ma'am. Mausam? Yes, ma'am. Himanshu, Abhijit, are you there? Virendra? Yes, ma'am. Done? Yes, ma'am. Done. Great. Shivang, are you done? Shivang? Matthew, are you done? Yes, ma'am. Done. Okay, great. चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। Just wait, 1 minute. Okay. So we have used like this. VLOOKUP. फिर से लिख देती हूँ एक बार. Lookup value is your this one, comma. Table array is your ठीक है, ये हो गया, got it, then 4, then 0, okay, AMP 260 का ये आ जाएगा, ठीक है, now okay, now class just find out that the personal name is there, ठीक है, इसकी सैलरी ढूंढ के निकालनी है, who will do it? आशुतोष कुमार सिंह की सैलरी निकालनी है, हाँ प्लीज डू इट. Got the question? Personal name you have written, salary you have written, and you have to find out the salary of Ashutosh Kumar Singh. ठीक है? Sushant has also raised the hand. अच्छा अब चेक और करो आप, फिर और आगे हम सुशांत आएंगे. अच्छा चलो अभी क्या करवा किया आपने,
मैंने अभी क्या बताया था कि इट डज नॉट गो बैकवर्ड। ओके गौरव, तो अब आप क्या करोगे, हमने कहां से ढूंढना शुरू किया है, पर्सनल नेम से, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, B2 से, राइट, B2 ओवर देयर, गॉट इट? हाँ, ये Yes, ma'am, yes. हाँ, ओके, B2, यस। अब सुनो दूसरी बात, यहाँ पे दूसरी बात देखो, जहां से हम शुरुआत करते हैं हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर वहां से शुरुआत होता है। अभी देखो तुमने B2 से स्टार्ट किया, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 5 इसका, तो 5 में क्या है, ड्यूरेशन आ रहा है, तो हम, मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर, पर्सनल नेम विल बी 1, स्टेट विल बी 2, डिपार्टमेंट विल बी 3, सैलरी विल बी 4। और किया इसमें? Yes, ma'am. आ गया एग्जैक्ट आंसर? अभी देखो पहले भी सही था, लेकिन क्या 5 था पहले ना आपका, तो 5 में what was there, it is the duration, salary was not come, ठीक है ना, आंसर आ गया, लेकिन the correct answer was not there। तो सैलरी के लिए पर्सनल नेम विल बी 1, स्टेट विल बी 2, डिपार्टमेंट विल बी 3, सैलरी विल बी 4। अभी यहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट निकालना हो आशुतोष कुमार सिंह का, कैसे निकालोगे? व्हाट यू विल राइट? इसी में एडवांस लुकअप में मैं एक ही फॉर्मूला सिखाऊंगी, अभी अब नहीं सिखा रही इसको, सेकंड सेमेस्टर का पार्ट है आप लोगों का। एक ही फॉर्मूला से हम सारा पूरा टेबल निकाल देंगे, ठीक है? आशुतोष का, आशुतोष का पहले लुकअप वैल्यू हाँ हाँ हाँ, पहले लुकअप वैल्यू फिर रेंज, और फिर डिपार्टमेंट 1 2 3 0 आ गया मैम। हाँ, ये बाद में सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को सिखाऊंगी कि एक ही फॉर्मूला से कैसे पूरा आप पिक कर सकते हो, ठीक है? वो नेक्स्ट सेमेस्टर, नॉट दिस मैम। लुकअप। हाँ, यस यस मैम, मेरे को फिर से जानना है कि सैलरी वाले को 5 क्यों लिया, 4 क्यों नहीं लिया? हाँ, I mean 4 क्यों लिया, 5 क्यों नहीं लिया? ओके ओके, थैंक यू गौरव। कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन? यस मैम। हाँ, हाँ, हमारा क्वेश्चन है धनश्री, दैट व्हाई वी हैव टेकन वी लुकअप में, इस सेकंड क्वेश्चन में अखिल अग्रवाल वी हैव टेकन अप कि अभी हमें उसकी सैलरी फाइंड आउट करनी है, सो व्हाई वी हैव टेकन, सो वी लुकअप हैज वन लिमिटेशन, दैट इज इन द वेरी बिगिनिंग आई हैव टोल्ड यू दैट इट कैन नॉट गो बैक। ओके, पीछे नहीं जा सकता है, तो जहां से हम शुरुआत करते हैं ना सिलेक्शन, ओके, वेयर फ्रॉम वेरिएबल, लाइक फॉर एग्जांपल यू वांट टू फाइंड आउट द नेम फाइंड आउट करना है आपको, सो नेम से आपने स्टार्ट किया, वेयर इज योर आईडी, आईडी कहाँ है, आईडी में हो, पर्सनल नेम से स्टार्ट किया, वी आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉय कोड, सो फ्रॉम वेरेवर वी आर स्टार्टिंग, कॉलम इंडेक्स वहीं से शुरुआत होती है। सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पर्सनल नेम, सो पर्सनल नेम विल बिकम, because we have left this employee code as idle now we are not searching that particular column, तो जब कॉलम ही नहीं सर्च करना तो उसको हम कैलकुलेशन में नहीं लाएंगे, सो फ्रॉम देयर पर्सनल नेम विल बिकम आवर कॉलम इंडेक्स 1, स्टेट विल बिकम कॉलम इंडेक्स 2, डिपार्टमेंट विल बिकम कॉलम इंडेक्स 3, सैलरी विल बिकम कॉलम इंडेक्स 4 एंड ड्यूरेशन विल बिकम कॉलम इंडेक्स 5। अभी देखो, अभी जैसे अभी आप दिखाओ, एक मिनट, जस्ट पिक अप गोवा फ्रॉम हियर। नहीं, इसमें तो रेपिटेटिव डेटा नहीं चलेगा यहाँ पे। मैम बट मैंने यहाँ पे 5 लिया तो सैलरी को इट वाज शोइंग मी 21। नो इट इज शोइंग ड्यूरेशन देयर, देखो ना यहाँ पे बच्चे, ये ड्यूरेशन आ रहा है, तो आप यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करो, पर्सनल नेम 1 है, स्टेट इज 2, डिपार्टमेंट इज 3, सैलरी इज 4 एंड ड्यूरेशन इज 5, तो ये ड्यूरेशन आ गया आपका 21। अब इसको 4 करो, देखो 12,000 आ गया इसका सैलरी। अभी यहीं पे आप इसको 3 कर दो, डिपार्टमेंट देखो आ जाएगा, इसको 3 करो, मार्केटिंग आ गया, नाउ मेक इट 2 देखो क्या आता है, सही है इसका स्टेट है, तो 1 is your personal name and state is your 2, department is 3, salary is 4 and duration is 5।
Yeah. यहाँ पे अगर रेपिटेटिव नहीं रहता ना तो फिर आगे भी बढ़ा के दिखा देती कि स्टेट का तुम सैलरी निकाल के दो या फिर ड्यूरेशन निकाल के दो, बट ये रिपीटेटिव डेट है सो इट विल ओके। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। एनीबॉडी एल्स हु इज फेसिंग प्रॉब्लम? एनीवन? मैम एक डाउट है, पूछूं क्या? हाँ यस शिवम प्लीज। मैम समझो अभी हम लोग को सैलरी दिया है और उतना सैलरी किसका है वो पता करना है तो हम लोग कर सकते हैं क्या? फॉर एग्जांपल 55,000 किसका सैलरी है? हाँ तो हाँ नहीं तो अभी क्या होगा कि ये बैकवर्ड जाना पड़ेगा ना हम लोगों को, तो इसके लिए हम लोग इंडेक्स मैच यूज करें, ठीक है? ठीक है। हाँ वो हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में करेंगे वी लुकअप, लेकिन बेस वी लुकअप समझ में आएगा, इंडेक्स मैच में भी हम लोग करना, क्योंकि बैक नहीं जा रहा है ना, क्योंकि देखो आपका क्या हो रहा है, आपका क्वेश्चन जैसे है कि हमें सैलरी पता है, हमें कि ये सैलरी किसको मिली है, तो हमें क्या करना है, बैक जाना पड़ रहा है ना, तो इसके लिए रिवर्स लुकअप यूज होता है या फिर एक्स लुकअप भी यूज होने लगा है अभी आजकल, तो वो दैट इज द मर्जर ऑफ ऑल योर एक्स लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैचिंग सारे के वो होते हैं, लेकिन मैं वो सिखाऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट सेमेस्टर, अभी बेसिक सीखो आप लोग, ठीक है? नाउ क्लास अभी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे हमने इसका पूरा निकाला कि कौन से डिपार्टमेंट का है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मन है कि मैं एक ही पूरा एक बना दूं, अभी मुझे बार बार यहाँ पे मैं फॉर्मूला एक ही लिखूं एंड मुझे मुझे जो भी पता करना है, जैसे मान लो फिर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 238 लिख देती, पेस्ट कर दिया मैंने, देखो तो ये चेंज हो गया, बट एवरी टाइम आई हैव टू जस्ट पिक अप एंड देन आई हैव टू पेस्ट इट एंड देन आई हैव टू जस्ट फाइंड आउट। इसके लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट कर दूं which will be having all the employee codes and directly by selecting from that drop down I can just check out the कि उनका डिपार्टमेंट कौन सा है। तो इसके लिए हम छोटा सा फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे, come to data students, all of you इसको डिलीट कर दो यहाँ पे, ठीक है? ये डिलीट कर दो और इसी यहाँ पे क्लिक करके come to data, डेटा में आया सर? मैम कैन यू रिपीट? हाँ देखो फॉर एग्जाम्पल वी लुकअप में इफ वी आर जस्ट यूजिंग मीन्स बिकॉज वी वर पिकिंग अप ऑल द एम्प्लॉय कोड्स एंड देन वी वर जस्ट फाइंडिंग आउट, so what we are doing now, we are creating a small application in which we will pick up all the employee codes here on, and from that drop down we are going to pick and then your formula is going to work for that, ठीक है? वो हम कैसे करेंगे? So delete that, whatever you have written over here, just delete that, and on that only just go to data. All of you are here in the data tab? Yes ma'am. Come to data validation. देखो data validation है क्या? This window, all of you have found this window? Yes ma'am. Okay, and from this from this list select this list wala option, select this list, okay, and from source ये पूरा का पूरा employee code control shift down button से select कर, only the employee code, not the entire table array, because we want that only the employee code से हम आगे अपना पता करें, and then A2 से A65 हिट ओके। अभी देखो एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखो आपके सारे एम्प्लॉय कोड्स आ चुके हैं, अब आप सिलेक्ट करो, कुछ भी आप सिलेक्ट करोगे आपका रिजल्ट यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे सेलेक्ट एनीवन, चेंज हो रहा है, देखो सारे आपने ये से सेलेक्ट कर लिए, तो आपने एक छोटा सा एप्लीकेशन बना के अपने खुद से अपना एक बना लिया। So now just keep on selecting and your formula is changing. Sorry, your results is changing. Your formula is working for all the employee codes now. Change हो रहा है सबका? See? Please do it, all of you. Please do it.
Yes, anybody facing problem in doing? No, ma'am. Done. Done? Great. Formula is working, Gaurav? Yes, ma'am. Absolutely. Any student who is facing problem? No, ma'am. Very easy, very simple. Amrita, done? Yes, ma'am. Great. Very simple. Harsh? मैम वो स्टार्टिंग में डेटा में कहाँ जाना था? आई डिडंट गेट दैट पार्ट. नहीं, data validation. Data validation. Have you found? Have you found or not, students? Data validation में and then list. If you want to remove, clear all कर दो बस. If you want to remove, you don't want the drop down anymore, you can just clear all कर दोगे तो आपका clear all कर दो and hit OK. तो ये आपका हट जाएगा, drop down हट जाएगा. ठीक है? Next semester we will also be doing the remove duplicates and text to column because this will actually facilitate you. जैसे कि मैंने बोला ना कि हमारा repetitive data है, तो उस repetitive data को हटा के then we will be applying the data validation. These are all the data cleaning. ये आपके data analysis में these are really very small things but very important and very effective. ठीक है, बहुत ये सब सारी चीजें हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में बस प्रैक्टिकली है, so we will be doing that. Got it, all of you, all the students? कोई दिक्कत नहीं? No, ma'am. Good, very good. Now we will do 2 sheets lookup. Then we will doing the charts and then we will be winding up with Excel. अभी ये sheet पे आओ, voters और party code. ये दोनों sheet पे हम काम करें. Like see, for example, you have this small data set available over here. Now you want to pick up the party name, that is the political party name from the other sheet. अच्छा, 2 sheet की जब हम बात करते हैं, so in that case at least one key should be common. ठीक है, जैसे हमारा party code common है दोनों में, as you can check it over. Party code common है यहाँ पे? Yes? Yes or no, students? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. अगर नहीं है आपको थोड़ा अपना उसके लिए डेटा टेबल और आपका चेक करना पड़ता है. अगर नहीं है then you won't be able to. ठीक है, so just make it a point that when you are searching तो आपकी एक पर्टिकुलर जो की है वो वहां होनी चाहिए, क्योंकि हमें सर्च करने के लिए कुछ तो चाहिए. ठीक है, so अब मुझे इस शीट पे मन है कि मैं ये सारे इस कोड के जो नेम्स हैं वो मैं पिक करके यहाँ पे ले आऊँ. ठीक है, I should pick up all these things on the names of all these party codes and I should bring it over. So we will again use VLOOKUP is used for that also. So हम again VLOOKUP use करेंगे इसके लिए. हम ये क्या लिखेंगे? VLOOKUP lookup value. तो lookup value क्या होगा हमारा? ये होगा टेबल अरे. अभी हमें टेबल कहाँ से फेच करना है डेटा? So I have to fetch it from, just immediately go there and ये select करना. Got it? Now कॉलम इंडेक्स क्या आएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स? क्या आएगा? मैम सिलेक्ट क्या करना है? सेलेक्ट क्या करना मतलब? पार्टी कोड मतलब हाँ, पार्टी कोड एंड नेम. तो वेयर इज नेम? नो मैम, माय डाउट इज कि पार्टी कोड A2 से चालू होगा कि A1 से चालू होगा? A1 भी कर सकते हो आप. ठीक है, लेकिन नहीं, A2 भी करो, A2 भी करो. ठीक है, A2 ही करो. सॉरी एक मिनट रुक जाओ. सॉरी, इसको यहीं से करो. ठीक है, ये किया आपने. नाउ मैम कॉलम नंबर 2 होगा. हाँ, वेरी गुड. कॉलम नंबर, हाँ, यस, कॉलम नंबर will be 2 because party code is 1 and this is the first one and this is going to be second 2, 0. अच्छा, वो A17 है.
Twice it is coming. Twice it is coming. C2. This one. Hello, ma'am. Yes. I think you have to take 825. Yeah. नहीं 822 B45 नहीं, वो दोबारा आ गया था मेरे से, और इसको जस्ट ड्रैग कर दो नीचे. So twice I have copied. See. आया सबका आंसर? Ma'am, can you explain it again? Yes. Can you please share your screen? Please share your screen. Who was sharing? Me. हाँ गीतांश, please कर. Come to voters वाले. Yes. Delete करो उसको. Delete, बस सीधे hit and delete बटन हो जाएगा. यहाँ पे आओ और delete बटन hit करो. Okay. Now write equal to VLOOKUP. Hit tab hit किया, enter मत किया करो. जब भी फॉर्मूला पिक करते हो ना तब आप टैब बटन प्रेस करो, ठीक है? VLOOKUP. हाँ, टैब. Yes. Now lookup value is L. ये वाला L सेलेक्ट करो क्योंकि ये हमें सेलेक्ट करना है. L. Yes. कॉमा. नाउ टेबल अरे के लिए पार्टी कोड पे आ जाओ. पार्टी कोड वाली शीट पे नीचे सीधे बिंदास आओ, एकदम कोई दिक्कत नहीं. हाँ, अभी यहाँ से सेलेक्ट करो A2 से. नहीं, ये पूरा टेबल नहीं है आपका, बचाओ. यस. हाँ, A2 से A2 से बच्चे 1 हाँ. यस, वहां से कंट्रोल शिफ्ट डाउन, राइट डाउन. ठीक है? Yes. Then comma 2 because party is in 1 and name is written in second column. ठीक है? तो 2 comma again and then 0 or false. Close the bracket. 0 and false. नहीं 0 और false. दोनों में से कुछ एक आप पिक करो. हाँ, close the bracket. Hit enter. आ गया. अब इसको ड्रैग करो नीचे. आप हाँ, तो इसने सारे जो आपके पार्टी नेम्स थे उसने पार्टी कोड शीट से पिक कर लिया है. चेक कर रहा कि अच्छा ये पार्टी कोड इज एग्जिस्टिंग देयर, इट हैज पिक्ड अप. इट वाज एग्जिस्टिंग देयर, इट हैज पिक्ड अप. ओके, ठीक है. मैम, ये जो ड्रॉप डाउन किया ना, मैंने भी ऐसे ही किया. तो व्हेन वी आर ड्रैगिंग डाउन द सेम, द रेंज इज चेंजिंग. तो रेंज को तो मैम उसको $, देके उसको फिक्स करना पड़ेगा. हाँ. नहीं, क्या तुम बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो मुझे समझ. हाँ गीतांश. Ma'am, but why did we take 2,0? 2,0 कम टू पार्टी कोड वाली शीट पे और नीचे 2 हमने इसलिए लिया, देखो, क्योंकि हमने यहाँ से ये पिक करना है ना. हमें इस टेबल को हमने अपना अरे बनाया है, ठीक है? तो इस टेबल में 2 ही कॉलम है अपना. एक कॉलम तो हमारा वो चेक कर रहा है एंड देन द सेकंड कॉलम इज द नेम. सो 1 2 इज देयर और हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, हमें अप्रोक्सीमेट मैच नहीं चाहिए, इसीलिए हमने 0 यूज किया.
अभी इसी में एक और कॉलम रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और कॉलम रहता है, जैसे नेम भी रहता या फिर कुछ नेम के बीच में भी कुछ रहता, इन दैट केस वी वुड हैव टेकन 3, विद दैट केस वी वुड, बिकॉज हमें पिक क्या करना है, हमें यहाँ से पॉलिटिकल पार्टी का नाम उठाना, सो दैट इज व्हाई इट इज 2 and 0 is being used. ओके ओके हाँ हाँ गौरव तुम बताओ क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम नहीं मैम, जैसे एक चीज जाना था, जैसे गीतांश ने वो हाँ। ड्रैग किया ना, ड्रैग करते पूरा चीज आ गया, हाँ तो हाँ उसमें मैम रेंज चेंज हो जाएगा जैसे हाँ ही ड्रैग वोटर्स में आओ, हाँ वोटर्स में आओ, वोटर्स में आओ गीतांश, Yes, ma'am. कम टू वोटर्स। हाँ ये करो, सेलेक्ट करो फर्स्ट सेकंड पे, एम पे क्लिक करो, एम पे यहाँ पे, नहीं सेकंड वाला, न्यू इकोनॉमी जहाँ आ रही है, न्यू इकोनॉमी जहाँ आ रही है, Yes, ma'am. ठीक है। हाँ तो इसको A2 to AB46 जो है ना, इसको सिर्फ लॉक कर दो आप। ये तो हमें C3 चाहिए क्योंकि हमें वो उसका लुकअप वैल्यू हमारा चेंज हो रहा है। गो टू प्रोहिबिशन पे आओ, फर्स्ट वन D2 पे आओ, हाँ इसका लॉक कर दो, अच्छा याद दिलाए, हाँ इसको लॉक कर दो पूरा। Ma'am, we'll apply dollar no for that. हाँ हाँ F4 प्रेस करो, F4 बिंदास F4 प्रेस करो, फंक्शन F4, then B45 also, B45 also, ठीक है। हाँ अब एंटर कर दो तो आपका रेंज नहीं हिलेगा, ठीक है, इट विल रिमेन इंटैक्ट। गॉट इट? Yes, ma'am. Thank you so much, Gitansh. Now Thank please you. open this. Hope it is clear to everyone, all the students. And please Yes. भूलना मत, ये सब शीट सब कुछ आप लोग रखो, सेकेंड सेमेस्टर में हम फिर वापस आएंगे इस पे। Got it? Because in second semester we have so much to discuss. बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सिर्फ प्रैक्टिकल करना है, no theory. Okay, now please go back to your sum if वाला एग्जाम्पल पे आओ, उस पे मैं चार्ट्स बताती हूँ आपको जरा से। सम इफ वाला जो शीट मैंने शेयर किया था, can you see my screen, students? No, ma'am. नो मैम। ये वाला शीट ओपन करो आप लोग। ओके इसकी कॉपी बनाओ। कैसे बनाएंगे कॉपी? यहाँ पे राइट क्लिक करो, मूव और कॉपी करो, मूव और कॉपी, मूव टू द एंड, क्रिएट अ कॉपी। ओके और इसको ना हम नाम दे देंगे चार्ट्स का, रीनेम करो इसको, ठीक है, इसको डिलीट कर दो। सबने क्या चार्ट्स का एक बनाया शीट आपने? Yes, students, can we start? Say yes or no, कुछ तो बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। सबने एक न्यू कॉपी क्रिएट की ना इसकी, उसी शीट की, उसको मत टच करना, उसको लेट इट बी लाइक दैट, जस्ट क्रिएट वन मोर, रीनेम इट एज चार्ट। All done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Now select this entire array, come to insert, tab, and then you can see the versions are different, so all of you will be finding some places here and there, तो वो चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं, वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे क्लास में कि कहाँ पे इसका क्या चाहिए। बेसिक जो चार्ट्स है उस पे हम काम करते हैं अभी।
अभी जब नेक्स्ट सेमेस्टर वी विल बी डूइंग डैशबोर्ड्स एंड पिवट चार्ट्स, उसमें और भी एडवांस लेवल पे हम जाएंगे. अभी बेसिक जितना है वो हम करेंगे. So as you can see, when you are there in the insert chart option, you have column. First is your column. Column is a very basic one and very important charts which we can use for making the things. So यहाँ पे आप देखो आपके 2D columns are available, 3D columns are available, cylindrical are available, cones are also available, pyramid. All chart types में आओ आप देखो तो ये सब जो भी है यहाँ पे ऊपर में available, you will find it over here. Line charts are there, ठीक है? So as you can see how many types of line charts are also available. Pie charts are also there. So it depends that for which particular chart, which type of charts you are using. Then bars are also there. Bars are also very important. Then area charts are there. ठीक है, ये सब नाम याद कर लो क्योंकि सब ना कंपनीज में भी पूछते हैं कि कितने टाइप के चार्ट्स अवेलेबल हैं एक्सेल के पास. ठीक है. नाउ योर XY स्कैटर. सो स्कैटर प्लॉट जब बनाते हैं हम प्लॉटिंग करते हैं 2-3 वेरिएबल्स को लेके अगर कुछ करना रहता है तो देन XY स्कैटर इज बीइंग यूज्ड. स्टॉक चार्टिंग करते हैं वेर इन योर फाइनेंशियल डेटा एंड स्टॉक के डेटा, शेयर्स के डेटा अगर हमें उस पर कुछ ग्राफ बनाना रहता है तो देन स्टॉक इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू ऑल सो दैट यू कैन. एंड स्टॉक ऑल्सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस व्हिच यू कैन यूज. देयर आर सरफेस चार्ट्स ऑल्सो अवेलेबल. ठीक है, सरफेस चार्ट सब जैसे सब साइंटिफिक पर्पस के लिए ज्यादा यूज होता है. Then we have donut charts. ये सब हम लोग डैशबोर्ड्स में यूज करेंगे. Again, it's like a pie only, but it's much more effective and dynamic in nature. You have bubble charts also, and then you have radar charts also. Got it, class? अभी हम सिंपल यूज करते हैं. कौन सा यूज करें? हम सिंपल स्टैक्ड कॉलम यूज करते हैं. ठीक है, स्टैक्ड कॉलम यूज करो. सब सेलेक्ट करो स्टैक्ड कॉलम. मिला आप लोगों को स्टैक्ड कॉलम एंड हिट ओके. ओके, आया सबका? अब इस पे अब हम काम करेंगे. Yes or no, class? Ma'am, could you please repeat that? Yes. Ma'am, वो repeat कर देंगे अभी जो किया. Select the sheet. Go to insert. Column chart में आओ. कुछ भी एक आपको जो भी मैंने वो select कर सकते हो. I have selected. I have told you to select 100% stack या फिर 3D column भी basic 3D column भी यूज करते हैं. ठीक है, इसको यूज करो 3D कॉलम. ठीक है, ये आ गया. अभी ये बहुत ही हैपहैजर्ड लग रहा है, इसको हमें थोड़ा क्लीन करना है. हमें क्या चाहिए इसमें, हम सिर्फ वो उतना देखेंगे. ठीक है. नाउ कमिंग टू दी सेलेक्ट ऑन द टॉप यू विल फाइंड सेलेक्ट डेटा ऑप्शन अवेलेबल ओवर हियर. ठीक है, सेलेक्ट डेटा. अभी यहाँ से मुझे कुछ हटाना है या इसको इधर उधर करना है, दैट आई कैन डू इट फ्रॉम हियर. जैसे यहाँ पे आप स्विच रो कॉलम भी कर सकते हो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सारा उठा के ये इससे कर दिया एंड योर यूनिट कॉस्ट एंड टोटलिंग इज कमिंग ओवर हियर. ठीक है, अभी इसमें और नहीं तो वापस आप ऐसे भी कर सकते हो. it is the default thing which your Excel has given it to you, but you can make certain changes into it also. अच्छा, इसमें मुझे चाहिए एडिट करना है. वैसे फॉर एग्जांपल यू कैन यूज एनीथिंग. मुझे सिर्फ इसमें रीजन की जरूरत. मेरे को डेट नहीं चाहिए, मेरे को रेप नेम नहीं चाहिए, मेरे को प्रोडक्ट्स का नाम नहीं चाहिए. ठीक है, सो मैं क्या करूंगी, मेरे को सिर्फ रीजन वाइज सेल्स दिखानी. रीजन वाइज सेल्स दिखानी. मैं इसको डिलीट करके एंड देन आई विल सेलेक्ट द रीजन. ठीक है, ओके करो. मैंने रीजन सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे. ओके, अभी यहाँ पे मेरे को यूनिट हटाना है. मैं यहाँ से यूनिट हटा रही हूँ. यूनिट कॉस्ट भी हटाना है. ये दिस आल्सो आई एम डूइंग एंड देन आई एम जस्ट हिटिंग ओके. गॉट इट? आया सबका ऐसे? आया कि नहीं? Can you repeat this part, please? Yes. Select data. Go to select data और नहीं तो सीधे सीधे आप चार्ट पे क्लिक करो. ठीक है, और यहाँ पे भी आपको select data का ऑप्शन अवेलेबल है. मिला? Yes, ma'am.
ठीक है, सेलेक्ट डेटा किया हमने और यहाँ से आपने सारे एडिट किए, एडिट में मैंने डिलीट किया और मैंने वो रेंज बाय डिफॉल्ट उससे सारा ऑर्डर डेट रीजन रेप सब सारे सेलेक्ट कर लिए। इसमें मुझे सिर्फ रीजन चाहिए एंड देन आई हैव हिट ओके। ओके, सो हमारा ये चीज आ गया। Got it? Now here also you can add again, अगर आपको मन है कि आप सीरीज नेम फिर से ऐड ऑन कर लो इसमें, सो आप इस सीरीज को ऐड ऑन कर सकते हो कोई भी रेंज। जैसे मान लो तुम्हें मन है कि तुम आइटम यहाँ पे ले आओ, आइटम वाइज सेल्स आपको दिखानी, ठीक है, सो आप यहाँ पे इस चीज को लेके आ सकते हो, ठीक है ना। आइटम डैश से ये सब चीजें आपको चाहिए तो आप यहाँ पे हिट ओके करोगे तो ये आइटम वाइज भी आपको शो करने लगेगा। लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें वो चीज चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ सिंपल ये टेबल जो है इसको शो करना है, ठीक है। सो अगेन गो टू बैक टू सेलेक्ट डेटा, आई डोंट वांट दिस वन, आई जस्ट वांट टू रिमूव इट। ओके, हाँ ये चीज ऐसा चाहिए मुझे। अब देखो इसमें हम कितने सारे, इतना सबका आया ऑल ऑफ यू? Ma'am, you selected region and which other? Region and total sales, that's it. Okay. Nothing else. Region and total sales. इतना सबका आया ऑल ऑफ यू? अब इसको हम ब्यूटीफाई करें। नहीं आया? नहीं। Just show me your screen. Okay. नहीं आया मैम। अच्छा देखते। Can you see me? Yes. आपने कौन सा चार्ट सेलेक्ट किया है? Sorry, एक मिनट। फर्स्ट वन सेल्स ऑर्डर का। नहीं, अच्छा ठीक है, आप आओ चार्ट पे, अपने चार्ट पे क्लिक करो। ओके, फॉर्मेट में आओ, ऊपर फॉर्मेट ऑप्शन है, फॉर्मेट देखो डिजाइन के जस्ट बगल में लास्ट वन, डिजाइन के आफ्टर डिजाइन फॉर्मेट इज द ऑप्शन। एक मिनट आराम से कोई बात। हाँ यस मैम। अच्छा इसमें ये है। अच्छा गो बैक टू डिजाइन, देन डिजाइन पे आओ आप। अच्छा यहीं पे है, सेलेक्ट डेटा हो, हाँ सेलेक्ट डेटा, चेंज चार्ट टाइप से पहले यस सेलेक्ट दैट वन। अच्छा यहाँ से यूनिट कॉस्ट आप हटाओ, यूनिट इधर आओ, फर्स्ट वन में यूनिट कॉस्ट पे क्लिक करो एंड ऊपर रिमूव कर दो उसको, यूनिट को रिमूव कर दो, यूनिट्स को भी सेलेक्ट दैट, रिमूव इट। ओके यस मैम। ओके करो उसको। ओके अभी रुक जाओ, 1 मिनट आलो। कम टू चार्ट, चेंज चार्ट टाइप, एक ऊपर में आपको ऑप्शन है, आपको चेंज चार्ट टाइप, यस। ओके इसमें आप आओ कॉलम में, फर्स्ट वन दिस वन। हाँ ओके ये बेसिक, ये गॉट इट। ओके मैम, थैंक यू। अभी इस पे और काम करेंगे। गीतांश आपका आया? थैंक यू हेलो। गीतांश योर्स इज डन? मैम ये ऐसे आ रहा है। अच्छा शो करो प्लीज, शो थैंक यू मैम। थैंक यू हेलो। हाँ देखो अभी आप आओ, चार्ट पे क्लिक करो, डिजाइन में आओ, अच्छा सेलेक्ट डेटा कर लो, सेलेक्ट दैट। अच्छा आपने हेडर्स नहीं लिया है? नो मैम। ओके दैट इज व्हाई दिस प्रॉब्लम इज कमिंग। इसको एक काम करो, आप ये जो ऊपर में है ना चेंज डेटा रेंज, उस पर क्लिक करो, इस पे ये जो एक एरो बना हुआ है ना चेंज डेटा रेंज, उस पे क्लिक करो। अच्छा या हाँ दैट वन ऑन, प्लीज क्लिक देयर, क्लिक इट, इसको डिलीट करो, उड़ाओ उसको, उसको पूरा, जस्ट रिमूव इट। मैम आपका वॉइस डिस्टॉर्ट हो रहा है। मैम ये नॉट ऑडिबल। डिलीट करो। हाँ अभी फिर से, हाँ अभी देन ब्लू वाला जो बटन है वो सेलेक्ट करो आप, ब्लू वाला बटन
हाँ, और वहां से ए पूरा टेबल जस्ट सेलेक्ट, हाँ सेलेक्ट इंटायर टेबल, सेलेक्ट इंटायर टेबल, ऑर्डर डेट एंड ऑल सब कुछ सेलेक्ट कर लो, पूरा कंट्रोल शिफ्ट करके पूरा सेलेक्ट कर लो टेबल। नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है, ये A1 B1 हो रहा है, जी आना चाहिए ना, जी जी, अब हो गया यस, हाँ अब हो गया। अब हिट एंटर, यहीं पे ब्लू पे करो, ब्लू पे ब्लू पे ब्लू पे ब्लू पे, ये जो ब्लू वाला है नीचे आपका, उस पे क्लिक किया, यस। अभी देखो ये आ गया। अभी यहाँ से आप यूनिट और यूनिट कॉस्ट, यूनिट सेलेक्ट करो, उसको डिलीट करो, रिमूव करो पहले, रिमूव रिमूव, यूनिट कॉस्ट को भी रिमूव करो, यस। रुक जाओ अभी यहाँ पे आओ, नेक्स्ट जो छोटा वाला है आपका दूसरा लेबल, एक्सेस लेबल जो है, एडिट करो उसको, एडिट करो, ये पेंसिल का ऑप्शन बना होगा, एडिट करो इसको, इसको भी डिलीट करो, डिलीट, जस्ट डिलीट दैट, बिंदास डिलीट करो, कोई बात नहीं। और रीजन सेलेक्ट कर लो पूरा, बी कॉलम, ऊपर सीधे बी कॉलम पे क्लिक कर दो, सिर्फ बी पे आप, हाँ बी पे ओके, हाँ ओके करो, देखो आ गया, अभी ओके, हेड अप पे, आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो अपने, थ्रू दिस मेथड यू कैन ब्रिंग इन, आपकी चॉइस पे, आपको क्या अपने ग्राफ में दिखाना है। आई एम तो जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, आपको अपने ग्राफ में जो भी दिखाना है, जो रिमूव करना है, यू कैन जस्ट फर्स्ट पिक अप एंड देन जस्ट स्टार्ट डूइंग द एडिटिंग ऑन दैट, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी, आप जितने क्रिएटिव हो उतना अच्छा ग्राफ बनता है, और स्टूडेंट्स जनरली मेक वेरी ब्यूटीफुल ग्राफ्स। थैंक यू पितांश, सबका आया? और मेरा नहीं आ रहा है। अच्छा राजीव, हाँ राजीव प्लीज शेयर योर स्क्रीन। राजीव प्लीज शेयर योर स्क्रीन। Yes, ma'am. Yes. And can you see it? स्टिल लोडिंग, देखो वही प्रॉब्लम हो रहा है आपका भी राजीव, ठीक है। Yes. सेलेक्ट करो, डेटा पे क्लिक, चार्ट पे क्लिक करो चार्ट पे, क्लिक एनीवेयर ऑन द चार्ट पे क्लिक करो, Yes. डिजाइन ऑप्शन में आओ, देखो ऊपर में है डिजाइन टैब आ गया है, जहां चार्ट पे क्लिक करोगे डिजाइन में, डिजाइन ऊपर टैब में, हाँ यहाँ आओ, यहाँ पे सेलेक्ट डेटा में आओ, सेलेक्ट डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलेक्ट डेटा, इसमें से यूनिट्स हटाओ, आप यूनिट्स रिमूव करो इसको एडिट करो, इसमें से मुझे सिर्फ रीजन चाहिए, डिलीट दैट, और बी सेलेक्ट कर दो, बी रेंज, कॉलम बी जो है उसको, हाँ बस, ओके ओके ओके, Yes. ठीक है। Yeah. Thank you. मैम यहाँ पे ये नेक्स्ट वाला में जो किया ना, रीजियन सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब ऊपर वाला हेडिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा? नहीं, अभी बता रही हूँ गौरव, एक मिनट रुको, सब बता रही हूँ, ठीक है। ये हम अभी देखो, यहाँ पे आप अपने चार्ट लेआउट्स भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, जस्ट यू कैन फ्रॉम हियर यू कैन सी, you can select the chart layouts over here is given, you can select as per your convenience, and whichever way which you like to select, you can just select any of one of them, ठीक है। ये ऐसा, जैसे मैं मालूम मुझे ऐसा चाहिए, ओके। नाउ आई जस्ट वांट कि मैं थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाऊं, ठीक है। ये सबसे भी आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। ये आप भी, अब जितने क्रिएटिव हो ना, आपका उतना अच्छा बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज आ गई, ये अभी ब्लैक बड़े इन है, पेशेंट्स के लिए ब्लैक करना, बट अदरवाइज यू कैन यूज आराम से ऑल दी ब्लैक वंस, और देखो आप वेबसाइट्स एंड ऑल यू कैन फाइंड आउट द ब्लैक बैकग्राउंड्स आर मोर प्रोमिनेंट, ठीक है, ब्लैक या ग्रीन, सो दिस इज ऑन are very soothing to eyes also, these types of graphs, but सिर्फ presentation में मत use करो ग्राफ को, black graphs, otherwise this is really very beautiful. In fact आप अपने projects में भी जब black graphs use करते हो ना, उसकी color print out निकालते हो, it's really look very beautiful.
ठीक है, तो ये अब आपकी क्रिएटिविटी पे, आपको कितना अच्छा लगता है, फ्रेंड्स तो बहुत अच्छी क्लास बनाते हैं। नाउ यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो गौरव वाज जस्ट आस्किंग, हमें अगर अपने चार्ट्स में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे फॉर्मेट चार्ट एरिया में, अभी यहाँ पे मैं फिल की बात बताती हूँ। फिल में नो फिल, देखो यहाँ पे कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ये सब चीजें सीखो आप। अब मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा रही हूँ, अब आपको खुद कितने क्रिएटिव हो, आपको ये सब चीजें देखनी। अभी ग्रेडियंट फिल में आओ तो यहाँ पे आप देखो बहुत सारे कलर्स हैं, ऑप्शंस हैं, ये सब आजकल बहुत इन है स्टूडेंट्स, ये सब आप देखना है इन सब चीजों। देखो ये मिला आप लोगों को, ऑल ऑफ यू मिला कि नहीं फॉर्मेट चार्ट एरिया? यस और नो? देखो सबको मिला कि नहीं है? No, ma'am. Where is it? मिला। एक मिनट, यहाँ पे आओ, राइट क्लिक, फॉर्मेट चार्ट एरिया है, मिला सबको? जस्ट सी, have you found? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो नो फिल भी है, कुछ नहीं चाहिए तो हटा दो सीधे, और जैसे जैसे चाहिए आपको सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल का आजकल बहुत है, आप देख लो, इसमें बहुत सारे सुंदर ऑप्शंस आर अवेलेबल, विच एवर यू फाइंड, जितने क्रिएटिव हो उतना अच्छा आपका ये दिखता है। ठीक है, ये सब जब हम लोग डैशबोर्ड्स बनाएंगे ना, उसमें आप लोगों को ये सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली। ठीक है, ये देखो इस टाइप से आप यू कैन मेक पिक्चर, और टेक्सचर फिल भी होता है। हाँ, ये वाला भी एक बहुत अच्छा आजकल चल रहा है, इन है, आप देखोगे वेबसाइट्स एंड ऑल पे यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ बैकग्राउंड्स। हैव यू सीन स्टूडेंट्स, ऐसे मिले आपको बैकग्राउंड्स? तो चार्ट आप ही का है, आप उसको जैसे जितनी खूबसूरती से आप बनाओ उसको उतना अच्छा है। ठीक है, ये देखो सेम विथ ऑटोमेटिक में, आप अपना जो भी है ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आपका जो भी सेलेक्ट करता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये मैं लेके चल रही हूँ। देन अगेन बॉर्डर कलर्स आल्सो, सॉलिड लाइंस देने हैं आपको। ठीक है, यू कैन जस्ट सेलेक्ट एनी ऑफ द कलर्स व्हिच यू वांट फॉर द बॉर्डर्स ऑफ योर ग्राफ, दैट कैन बी कमिंग ओवर हियर। बॉर्डर स्टाइल्स आपको दिखाने हैं, कैसे किस टाइप के होने चाहिए आपके बॉर्डर के स्टाइल्स, वो भी आप देख सकते हो, स्क्वायर, राउंड, मिल्टर, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन जस्ट शैडो, मतलब जो नहीं शैडो आता रहता है, दैट यू वो जस्ट वांट टू ब्रिंग इन, ये सब आप कर सकते हो उसमें चेंजेस, एंड यू कैन सी द इफेक्ट ऑन दिस। 3D फॉर्मेट में भी लाके दे सकते हो, और 3D रोटेशन, ये हम 3D रोटेशन सीखेंगे सेकंड सेम में, when you will doing the pie chart। ठीक है ना, पाई चार्ट में 3D रोटेशन बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग ये सब सारी चीजें इसमें देख सकते हो। ओके, ये मिला आपको, सबका चेंज हुआ? यस और नो क्लास? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो फॉर्मेट चार्ट एरिया से आप ये सब सारी चीजें अपना कर सकते हो, जो भी आपको चेंजेस लेके आने, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, जैसे भी whichever way you like to want, you can just select anyone। now यहाँ पे अगर मुझे चेंजेस करने हैं कि क्या चार्ट क्या है, तो रीजन वाइज से, रीजन, ओके, इसको भी चेंज करना है, एक्सेस टाइटल को टोटल सेल्स, सब चेंजेस कर लो आप। यहाँ पे टोटल सेल्स आ गया हमारा, और यहाँ पे आप चेंज कर लो, यहाँ पे क्या करोगे, इसको रीजन। ठीक है, जो भी लॉजिक आपको लग रहा है उसके अकॉर्डिंग यू कैन मेक द चेंजेस। यहाँ पे भी आओगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट ऑप्शंस में आपको ये सब सारी चीजें होंगी, हॉरिजॉन्टली दिखानी है, कैसे दिखानी है, ये सब सारी चीजें आप यू कैन जस्ट, प्लॉट एरिया करना है कि प्लॉटिंग दिखानी है, ये सब सारा देख सकते हो। ठीक है, ये आपका पूरा कैसे जा रहा है, दैट यू कैन सी ओवर है। ठीक है, यहाँ से भी आप यू कैन मेक द चेंजेस, जो भी आपको चेंजेस करने हैं यहाँ भी आप से कर सकते हो। सो चार्ट इज समथिंग, हम आपको रास्ता दिखाते हैं, अब आप अपने हिसाब से आपको जैसा क्रिएटिव बनाना है, जिस तरीके से बनाना है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स मेक बेटर ग्राफ्स देन ऑल दी फैकल्टीज, मैं इसको बहुत अच्छे से बोलती हूँ क्योंकि वो लोग ज्यादा क्रिएटिव
दे नो हाउ टू। सीधे सीधे चार्ट टाइटल बदलना है जैसे अभी हमने मैनुअली किया, यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अबव चार्ट रखना है इसको, या फिर इसको आपको सेंटर ओवरले करना है, इसके ऊपर लेके आना है, दैट ऑल्सो विल वर्क, लेकिन हमें अबव चार्ट ही चाहिए होता है तो उसको हम ऊपर लेके जाते हैं। देन एक्सेस टाइटल्स को आपको कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है, टाइटल बिलो द एक्सेस कैसे लाना है वो सब आप देख सकते हो। लीजेंड्स रखना है कि नहीं, शो लीजेंड्स एट द राइट मींस इसका मतलब क्या है टोटल, तो ये हम यहाँ से ले सकते हैं। लीजेंड समझते हो ना क्या होता है, ये जैसे यहाँ पे बेस्ट होता है, एट द टॉप भी आप रख सकते हो, योर चॉइस कंप्लीटली योर चॉइस, वेरेवर यू वांट टू पिक अप प्रॉफिट। यहाँ भी इस तरफ रहता नहीं है जैसे जनरली, बट इट डिपेंड्स। बॉटम पे भी नहीं, it doesn't look nice, it's always toward on the top or towards the left you can put up your legend, ठीक है। अगेन डेटा लेबल्स चाहिए कि नहीं आपको शो, जैसे मान लो ये नंबर्स मुझे चाहिए हो, तो ये नंबर्स मैं रखूं या ना रखूं, तो ये आप पे भी डिपेंड करता है, तो चाहिए तो नहीं तो बिकॉज इट लुक्स वेरी मच क्लटर्ड, तो सीधे आप इस पे क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो, ठीक है, तो ये हट जाता है। डेटा टेबल, शो डेटा टेबल आपको रखना है कि नहीं, ये सब सारी चीजें ये रखना है कि नहीं, नहीं चाहिए हमें, सो यू जस्ट जनरली हटा देते हैं उसको। ओके, ग्रिड लाइंस हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, सो मेजर ग्रिड लाइंस आप दिखाओ, ये वाली ग्रिड लाइंस अच्छे लग रहे हैं, अगर इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आप अपना माइनर ग्रिड लाइंस ये भी दिख सकते हैं इसमें किस साथ, सो ऑल दिस कैन बी डन, इट्स टोटली अप टू यू दैट हाउ यू आर मेकिंग इट। show chart walls also, you can just show it over there, ठीक है। more wall options, ये वही वाले format walls जैसे हमने पीछे का अपना changes किया था, you can make the changes over, okay okay class। अच्छा मेरा ना ये ट्रेंड लाइन नहीं आ रहा, आप लोगों में आ रहा है ट्रेंड लाइन स्टूडेंट, जस्ट चेक करो तो एक बार। तो कंपैटिबिलिटी मोड में आ रहा है ना, जस्ट चेक, एनीवन, कैन एनीवन शो मी योर स्क्रीन। सुशांत एक मिनट दिखाओ तो अपना स्क्रीन। यस मैम। क्लोज इट। कंपैटिबिलिटी मोड है मैम, इसलिए ये फॉर्मेट चेंज। अच्छा मेरा भी वही आ रहा है, किसी का जिसका नहीं आ रहा है कंपैटिबिलिटी मोड में, हम इसको हेलो कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कन्वर्ट हाँ हाँ कर लो बेटर है ग्राफ में, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम होता रहता है, ठीक है। आया क्या? एक सेकेंड मैम चेक कर लेते हैं। हाँ आ गया। जस्ट शेयर योर स्क्रीन। हाँ इस पे क्लिक करो, क्लिक ऑन द ग्राफ, कम टू फॉर्मेट, फॉर्मेट में आओ। ट्रेंड लाइन आ रहा था ना, नहीं आया। डिजाइन में आओ, डिजाइन में, डिजाइन में। नहीं आ रहा है ट्रेंड लाइन, भाई किसी में आ रहा है ट्रेंड लाइन? नहीं नॉट दिस वन। एक मिनट, आर्ट एड चार्ट एलिमेंट में आओ तो, आर्ट एड चार्ट एलिमेंट। हाँ ये तो चार्ट एलिमेंट्स, हाँ इसमें देखो आ रहा है नीचे, कम डाउन ग्रिड लाइन लीजेंड्स नहीं, ये तो ये बेसिक वाले ट्रेंड लाइन की बात मैं बोल रही। वो चार्ट टाइप में डिपेंड करेगा ना मैम, ये चार्ट टाइप में नहीं इसमें बनेगा ना, ट्रेंड लाइन क्यों नहीं बनेगा इसमें, आराम से। हाँ यस आलोक, हैव यू फाउंड? या हाँ मेरे में है। अच्छा एक मिनट प्लीज, एक मिनट सुशांत तुम स्टॉप। आलोक प्लीज शेयर। ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन, हाँ इसमें ये क्लिक करो इस पे, देयर वाज एन ऑप्शन कमिंग ट्रेंड लाइन में, यहाँ कम डाउन। हाँ यहाँ पे ये एरो है ना, इस पे क्लिक करो, एरो पे, हाँ लीनियर पे क्लिक करो।
लीनियर पे क्लिक करो। किया? इट्स नॉट कम। आ रहा है। नहीं आ रहा है, एक मिनट। इट शुड कम लाइक अ लीनियर रिग्रेशन वाली होता है, वो कनेक्ट करके आपको दिखा देता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको मैं बताती हूँ नेक्स्ट क्लास में। इस कंपैटिबिलिटी मोड से मैं भी चेंज करके देखती हूँ। थैंक यू आलोक। अच्छा हाँ, एक मिनट। नहीं आ रहा है। ओके, आई विल जस्ट लेट यू नो दिस थिंग। ठीक है ना, अभी इतना आप लोग एक्सप्लोर करो, नहीं तो ये ट्रेंड लाइन पे आ जाता है। ठीक है, आई विल जस्ट लेट यू नो इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, okay class, and please practice these are really very important concepts, and ये सब चीजें आपको आना है। और ये और हम डेप्थ में जाएंगे when we'll be doing your pivot charts and your dashboards in the second semester। ठीक है, क्योंकि अभी टुडे इज द सिनेरियो ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। आप जितना अच्छा डेटा विजुअलाइजेशन, आप जितना एक्सपर्ट बन सकते हो, उतना अच्छा है आपके लिए। ठीक है ना, क्योंकि देखो अभी आपको आपका फॉर्मूला क्या लग रहा है, उसके पीछे किसी को कुछ मतलब नहीं। कितना सुंदर आप विजुअलाइज करके यू कैन जस्ट पोर्ट्रेट एंड प्रेजेंट इट इन फ्रंट, दैट इज ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस। जैसे आप देखो, आपके ये सब जितने टैब्ल्यू एंड ऑल एवरीथिंग आज सारे डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स हैं। तो ज्यादा अभी इम्पैक्ट हो रहा है कि हाउ बेटर यू कैन विजुअलाइज योर प्रेजेंट एंड मेक योर विजुअलाइजेशन मच मोर इम्पैक्टफुल इन फ्रंट ऑफ योर organizations। ठीक है, so please take it seriously these things, and और ये charts आप लोग अपने simple और भी किसी चीज के लिए यूज कर सकते हो, आप अपने और भी किसी प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हो। ओके, so please make it a point that you are using it। ठीक, Yes ma'am। हाँ, चलो, thank you so much students। Thank you ma'am। थैंक यू मैम। Thank you. थैंक यू।